we had started off with financial management and three crucial decisions, that is investment decision, capital budgeting decision and dividing the profits यानी कि dividend decisions हम लोगों ने पढ़ लिया. Now normally there one question comes which is called as differentiate between financial management and planning. जो चीज हमारे हाथ में होती है, whatever there we have in our hand, जब हम उस चीज को मैनेज करते हैं तो दैट कम्स अंडर द टर्म मैनेजमेंट. वेयर इज जिस चीज को हमें फोरकास्ट करना है आगे के लिए, दैट वुड कम अंडर प्लानिंग, which is for the future, that is planning, and which the decisions which we have to take right now or with the given resources, that comes as manage. So you may be asked this question, what is the difference between financial management and financial? यानी कि एक blueprint करना कि हम ये काम को कैसे करेंगे. Why do we have financial management? That is because we want to ensure, we want to increase the wealth of the shareholders. Whereas, why do we need a financial planning? ताकि हमें पता हो that when we require the money, it is available with us and that we are not keeping the excess fund, और हम एक तरफ हमारे पास excess fund पड़ा है और हम जो है we are going into debt. तो that is why we need a planning, ताकि हम लोग उस wasteful expenditure को बचाएं. और जब हम लोगों की कंपनी को, हमारे बिजनेस को पैसों की जरूरत हो तो दे आर अवेलेबल विद अस, एंड दैट इज व्हाई वी हैव टू मेक अ प्लान. It is about the future operations. These two questions come: what are the objectives of financial management and what are the objectives of financial planning? So to ensure enough funds are available at right time. If adequate funds are not available, the firm will not be able to honor its commitments and carry out its plan. On the other hand, if excess funds are available, it will unnecessarily add to the cost and may encourage wasteful expenditure. हमें लगेगा हम ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, तो we have to plan it. It must be kept in mind that financial planning is not equivalent or a substitute for management. It is about investment. It is about choosing alternatives. It is about increasing the wealth, and financial planning is about the smooth operations. जो हमारे fund requirements हैं, उनकी availability. For example, if a capital budgeting decision is taken, capital budget का मतलब है assets, the one जिसमें आपका ज्यादा पैसा लगेगा. So the amount of expenses, revenues are likely to increase. तो क्या करता है planning? It will try to forecast all the items which are likely to undergo changes. यानी कि जब हम मैनेज करते हैं तो उस वक्त हमें प्लानिंग करनी पड़ती है. It enables the management to foresee the fund requirements, both the quantum as well as timing. Quantum and timing मतलब कितना चाहिए और किस वक्त हमें चाहिए. Shortage and surpluses are forecast so that necessary activities are taken in advance to meet those situations. यानी कि हमारे दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, एंड दिस इज वन इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ योर पेपर. ये आपका 3 मार्कर में भी आ सकता है एंड 2 मार्कर में भी आ सकता है. 2 मार्कर में आएगा तो यू हैव टू जस्ट राइट दिस. एक बात आपको बार बार मैं आप लोगों को सबको समझाने की कोशिश कर रही हूं, बेटा देयर आर 3 टर्मिनोलॉजी.
There are three terminologies. One is identify, second is state, and third is explain. तो अगर आपके पेपर के अंदर जो है, इफ यू आर गेटिंग द क्वेश्चन आइडेंटिफाई, तो आप सिर्फ आइडेंटिफाई करके छोड़ सकते हो. लेकिन अगर लिखा है स्टेट, तो यू नीड टू राइट द डेफिनेशन. एंड इफ इट इज एक्सप्लेन, तो उसका मेरिट है या डीमेरिट है, एनीथिंग विच इज एसोसिएटेड विद इट, इट हैज टू बी गिवन. आप लोग हमेशा क्वेश्चन को जरूर पढ़ना, what it is given, whether it is identify, whether it is state, whether it is explain. For example, financial planning strives to achieve the following twin objectives. First is to ensure availability of funds whenever required. क्योंकि हम एस्टिमेट करते हैं आने वाले साल, आने वाले सेमेस्टर, आने वाले क्वार्टर, उसके लिए हम करते हैं. अब हमें चाहिए होगा पैसा. It may be on a longer term, it may be on the day-to-day expenses. There is also the need to estimate the time, कब हमें ये पैसा चाहिए होगा. तो फाइनेंशियल प्लानिंग के थ्रू हम एस्टैब्लिश करते हैं, अच्छा हमने ये पैसा यहाँ लगा रखा है, जब हम ये पैसा निकालेंगे तो यू विल यूज इट इन दिस. फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी है, दैट कंपनी हैज इन्वेस्टेड इन इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट ऑफ अनदर कंपनी. अब जब उसने इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट में इन्वेस्ट किया होगा, तो उसने पहले प्लान किया होगा कि मुझे ये जो पैसा है, आई रिक्वायर दिस अमाउंट आफ्टर 6 months. तो 6 महीने तक ये मेरे पास ये पैसा आइडल पड़ा है, तो आई वुड इन्वेस्ट इट इन इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट. सो दैट मीन्स इट विल एंश्योर किस पैसों को आप कहां पर रख रहे हो एंड कब वो हमें यूज आएगा. यानी आपने 6 months के बाद कुछ प्लान कर रखा है, दैट यू नीड दिस, यू हैव अ प्रोजेक्ट जिसका आपको जो है आफ्टर 6 months यू हैव टू स्टार्ट, और 6 months तक आपके पास पैसा है, तो आपने प्लान किया. टू सी दैट फर्म डज नॉट रेज रिसोर्सेस अननेसेसरीली. कभी कभी क्या होता है, हमारे पास फाइनेंस एक्स्ट्रा होगा, we may use it in the wrong manner. Excess funding is almost as bad as inadequate funding. Even if there is some surplus money, good financial planning would put it to the best possible use so that resources are not left idle and doesn't unnecessarily add to the cost. कई बार क्या होता है, कई बिजनेसमैन क्या करते हैं, they don't make a blueprint. क्या रिक्वायरमेंट है, कितना रिक्वायरमेंट है, कब रिक्वायरमेंट है. फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव टू अंडरस्टैंड दिस, देन दे हैव टू फाइंड आउट कि आपके पास अवेलेबल फंड क्या है, एंड देन यू हैव टू मिक्स एंड मैच. अब मुझे पता है कि मेरे पास बिजनेस में पड़ा हुआ रिटेन्ड अर्निंग पड़ी है, बट I did not take it into account and I had gone for some another alternative source. तो मेरे लिए गलत है. दूसरा, मेरे पास रिटेन्ड अर्निंग पड़ा है, तो मैंने सोचा कि मैं इस पर भी इन्वेस्ट कर दूं, इस पर भी इन्वेस्ट कर दूं. I have to be very careful. I have to be very wise. Thus, a proper matching of fund requirement, their availability, इसको हम प्लानिंग से करते हैं. यानी कि द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द फंड रिक्वायरमेंट, स्पेसिफाइंग द सोर्सेज ऑफ फंड इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल प्लानिंग. क्योंकि वो आपके आने वाले ग्रोथ, आपका परफॉर्मेंस, उसके अंदर आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट आ जाता है. It includes long term as well as short term. Long term growth, investment, capital expenditure, आपका जितना भी. शॉर्ट टर्म आपका जिसको हम बजट बोलते हैं, हर साल का, हर 3 महीने का
हर 6 महीने का देयर कैन बी, बट नॉर्मली जो हमारी प्लानिंग चलती है दैट वुड बी फॉर अ पीरियड ऑफ 3 to 5 years। एंड जो हम शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं उसको हम बोलते हैं बजट। आपको याद होगा प्लानिंग के अंदर जो है हम लोगों ने पढ़ा था, इवन दो इट वाज नॉट देयर एज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, लेकिन हम लोगों ने उसके अंदर पढ़ा था दैट स्ट्रेटजी, देन पॉलिसी, देन बजट। तो उसके अंदर हमने पढ़ा था बजट जो होता है वो वन टाइम यूज होता है। वन टाइम यूज का मतलब हो जाता है इट इज मेड फॉर अ शॉर्ट पीरियड। वी कैन नॉट मेक द बजट फॉर अ लॉन्गर पीरियड। इट इज वेरी, मैं अब मतलब बजट बना भी लूंगी, आई कैन नॉट मेक श्योर दैट इट इज गोइंग टू बी यूजफुल फॉर द एंटायर ईयर। तो आजकल कंपनीज ने क्या कर रखा है, दे हैव इवन मेड द बजट्स लाइक क्वार्टरली। पहले तो एनुअली होता था बट नाउ दे आर इवन एलोकेटिंग द फंड्स क्वार्टरली। तो क्या हम करने वाले हैं इस 3 साल के दौरान, हम पैसों को किस तरीके से यूज करने वाले हैं, दैट इज फाइनेंशियल प्लानिंग। हम कैसे यूज करने वाले हैं, प्रोडक्शन में कितना लगाएंगे, हम मार्केटिंग में कितना लगाएंगे, हमारा कितना रिटर्न होगा, कहां से ये पैसा उठाएंगे, दैट ऑल वुड इंक्लूड अंडर द फाइनेंशियल प्लानिंग। Financial planning usually begins with preparation of a sales forecast। सबसे पहले हम सोचते हैं क्या हमारा सेल्स हो सकता है। सपोज अ कंपनी इज मेकिंग अ फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर नेक्स्ट 5 years, तो क्या सेल्स हो सकता है उसे वो कैसे देखते हैं, पिछले 2 या 3 साल का अपना सेल्स, अपने कॉम्पिटिटर्स का सेल्स, एंड देन मार्केट का सिनेरियो, बिजनेस एनवायरनमेंट जो हम लोगों ने अब तक स्टार्टिंग में पढ़ा है, बिजनेस एनवायरनमेंट, इन सबको जो है दे वुड बी एनालाइजिंग और व्हाट वी कैन कॉल ए स्कैनिंग। दे वुड स्कैन द एंटायर कि इस वक्त बिजनेस का ये चल रहा है, लाइक फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ आफ्टर द पैंडमिक थिंग्स हैव इम्प्रूव्ड। तो एक अंदाजा लग रहा है कि आने वाले टाइम में लोग जो है अपना पैसा ज्यादा जो है इन्वेस्ट करेंगे इन रियल एस्टेट्स, इन व्हीकल्स, इन टूरिज्म। मतलब मैं ये 3 अलग अलग सेक्टर्स ले रही हूँ, ठीक है। अब हमने मतलब हमारे दिमाग में है, लोग जो हैं जिस तरीके से बाहर जा रहे हैं घूमने के लिए, पैंडमिक खुल गया है, इंटरनेशनल ट्रैवल्स खुल गए हैं, तो एक प्लानिंग ये हो रही है कि आने वाले 3 साल सिचुएशन ऐसा ही रहा तो लोग इतना घूमने जाएंगे। तो ये फोरकास्ट है, इट मे और मे नॉट हैपन, एंड ऑन दैट बेसिस अब पिछले 2 साल को माइनस कर देंगे हम, क्यों, क्योंकि पैंडेमिक तक कोई बाहर गया ही नहीं था। उससे 3 साल, उसके जो पहले 3 साल है उसमें देखेंगे नंबर ऑफ पीपल जो बाहर गए थे, जो इंटरनेशनल टूरिज्म में गए थे, एक डेटा लिया जाएगा एंड उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है एक रफ ड्राफ्ट बनाएंगे जिसको हम बोलते हैं ब्लूप्रिंट, कि इतने लोग बाहर जा सकते हैं। देन वी वुड एनालाइज ऑल द कंट्रीज जहां लोग जाते हैं, जैसे थाईलैंड आपका हो गया, सिंगापुर हो गया, मलेशिया हो गया। देन ऑन द यूरोपियन साइड पीपल मोस्ट ऑफ मोर और लेस गो टू स्विट्जरलैंड, देन इटली, ग्रीस। तो एक ब्लूप्रिंट लगाया जाता है कि ये ऐसा हो सकता है। तो अब ऐसा होगा तो हम लोग टूरिज्म इंडस्ट्री में हैं तो हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी लोगों को अकोमोडेट करने के लिए, वो सारी चीजों की लिस्ट बनेगी। एंड देन मतलब मान लो मेरा टूर्स एंड ट्रैवल्स का है तो आई वुड बी मेकिंग, मुझे क्या क्या चाहिए होगा, मुझे मतलब कि व्हाट विल बी माय रिक्वायरमेंट, मुझे कितना रिक्वायरमेंट चाहिए होगा फॉर फिक्स कैपिटल, फॉर वर्किंग कैपिटल, व्हाट वुड बी द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट,
मैं ये सारा का सारा जो है एक प्लान बनाऊंगी एंड देन उन प्लान के अकॉर्डिंग मैं उसको मैनेज करूंगी. Then I would be managing them, whether I should go for internal, whether I should go for external, what should be the source, how I would incorporate. मैं ये पूरा एक blueprint बनाऊंगी. So that is financial planning. जितना हम financial planning को करते हैं बेटा, planning is always important for every aspect, whether you are a student, whether you are a housewife, whether you are a teacher, whether you are a doctor. Anyway, doctors अपना plan करते हैं आने वाले 5 दिनों में उन्होंने कितने operations करने हैं, कितने मतलब कि OPDs देखने हैं. Everyone has their own planning. Planning is always an essential. Financial planning means you need the money. Situation हमेशा ऐसा नहीं रह सकता है. Sometimes you may be having a slow growth, so you should have the availability. It should not be that business is falling into the debt. So we prepare a blueprint और एक alternative हम रखते हैं, उसको हम बोलते हैं financial planning. Now आपका आता है capital structure. You don't need to read this. You will directly go to capital structure. Now what is capital structure? हम लोगों ने इसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी पढ़ा था. कैपिटल बजटिंग होता है बजट बनाना फॉर द कैपिटल, कितना चाहिए होगा. एंड स्ट्रक्चर होता है हम किस तरीके से पैसों को यूज कर सकते हैं. मींस इफ माय कंपनी is taking more or loan and less on equity, is it feasible? If my company is taking completely owner's fund, there is no borrowed fund, is it right? तो आपको वो proportion देखना पड़ता है आप अपने कैपिटल को कैसे लाते हो. एंड दिस इज फॉर द लॉन्ग टर्म, नॉट फॉर द शॉर्ट टर्म. शॉर्ट टर्म हम लोग नॉर्मली मनी मार्केट से ले लेते हैं. जितने हमारे शॉर्ट टर्म्स होते हैं सारे मनी मार्केट के अंडर आ जाते हैं. वी प्लान फॉर द लॉन्ग टर्म, दैट हम कैसे रेज कर सकते हैं फंड को, विच शुड बी चीपर फॉर द लॉन्गर पीरियड. आई रिपीट, it should be cheaper for the longer period. As in 11th standard we had studied that there are two kinds of funds sources on the basis of ownership. पहला आपका होता है ओनर्स फंड, यानी इक्विटी, प्रेफरेंस, रिटेन्ड अर्निंग्स, वो सारा हमारा खुद का है. And second one is borrowed, loan, debentures, loans from banks, public deposits. तो क्या होना चाहिए? No company would completely go for owners, no company would go for completely for the borrowers fund. There shall be always a mix and match. बट वो कितना मिक्स एंड मैच होना चाहिए? 20-80, 50-50, 60-40, 70-30. दिस वी हैव टू कैलकुलेट. इसको हमें जो है कैलकुलेट करना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं डेट अपॉन इक्विटी और डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी. ये आपके पेपर में 1 मार्कर क्वेश्चन के अंदर आ सकता है. कैपिटल स्ट्रक्चर का फॉर्मूला. द फॉर्मूला ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर इज डेट अपॉन इक्विटी और डेट अपॉन डेट एंड इक्विटी. व्हाई? बिकॉज दोनों का जो कॉस्ट है, मीन्स इंटरेस्ट हो गया, डिविडेंड हो गया, टैक्स हो गया, दीज आर ऑल द कॉस्ट फैक्टर्स. दीज आर ऑल द कॉस्ट फैक्टर्स. आपके ये सब जो है कॉस्ट फैक्टर्स हैं. आप जो इंटरेस्ट दोगे तो वो भी आप ही की कंपनी को एड ऑन हो रहा है. आप जो टैक्सेस दे रहे हो वो भी आपकी कंपनी की ही जेब से जा रहा है. देन द रिस्क, कितना रिस्क है आपके?
And the risk is, it can be, sometimes you may not be able to repay. Sometimes it may be that you are not able to dilute. मतलब मार्केट इतना आजकल आज जो सिचुएशन है, पिछले कुछ मतलब की टाइम से द सिचुएशन इज वेरी वेरी पुअर. द सिचुएशन इज वेरी वेरी पुअर. मार्केट जो है इट हैज बीन ऑन द रिड्यूस्ड साइड. मतलब जो शेयर्स आपके पहले हजार में बिक रहे थे, दो शेयर्स राइट नाउ दे आर बीन सोल्ड एट 500 to 600. दिस इज बिकॉज ऑफ द वॉर सिचुएशन रशिया एंड यूक्रेन का. तो इस वक्त में अगर कोई भी कंपनी जो है अगर इक्विटी शेयर्स को डाइल्यूट करती है, तो द कंपनी विल नॉट बी एबल टू सेल दोज शेयर्स. सो देयर आर मेनी फैक्टर्स. ये तो मैंने सिर्फ एक फैक्टर आपको बताया है, ऐसे बड़े सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से मार्केट में कभी कभी उतार चढ़ाव होता है. तो वी हैव टू एनालाइज कि कितना रिस्क है, and this risk has to be calculated along with the repayment. भाई आपने कर्जा लिया है तो उसको तो आपको रीपे करना ही पड़ेगा. whereas if you have taken the equity shares, then आपको जो है अदर फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेंगी. तो कौन सी चीज आपके पास रेडीली अवेलेबल है, किस चीज पर आप रिस्क उठाने के लिए तैयार हो, that will be the capital structure decision. The cost of debt is lower than the cost of equity for a firm because lender's risk is lower than equity shareholders' risk. Since the lender earns an assured return and repayment of capital. Additionally, interest paid, हमें इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा, is deductible expense for computation of tax liability where dividends are paid out after tax profit. अगर हम पैसा लेते हैं कर्जे पर, तो एक सबसे अच्छी बात क्या होती है, that we have the facility of getting the tax benefit. कर्जा लिया है तो टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा. तो कौन सा आपको लेना चाहिए? But increased use of debt therefore is likely to lower the overall cost, provided that cost of equity remains unaffected. So ये आपको करना पड़ता with EPS, that is earning per share, जो हम बाद में करेंगे. Secondly, debt is cheaper but is more risky. Why? ये पेपर में ऐसा ही आता है जैसे इसमें लिखा हुआ है, डेप्ट इज चीपर देन. क्योंकि डेप्ट जो है रिस्की इसीलिए है क्योंकि अगर आपके पास, इफ यू डोंट हैव रेडी कैश, then you would not be able to give the interest and you would not be able to return the principal on time. और उससे दो चीजें होती हैं, एक कंपनी लॉस में जाने के चांसेस है. सेकेंडली, अगर आप डिफॉल्टर हो जाते हो, आगे आपको जो है लोन मिलने की जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं, बिकॉज यू आर इन द ब्लैक लिस्ट, यू कम अंडर द ब्लैक लिस्ट. सो यू हैव टू मेक दैट. इक्विटी में ये चीज नहीं है. अगर आप इक्विटी को उठा रहे हो तो देन यू डोंट हैव दिस रिस्क ऑफ रिटर्निंग बैक. तो यू हैव टू सी विच इज बेटर. क्योंकि अगर आपका वर्किंग कैपिटल जो है बहुत ज्यादा है, इफ योर वर्किंग कैपिटल इज टू मच, then you should use less of debt capital. You should use less of debt capital. The reason is आपको जो है you have to pay the interest and you have to repay the principal on the given time. Financial risk is the chance
दैट अ फर्म वुड मीट इट्स पेमेंट ऑब्लिगेशन। तो कैसे हम बनाते हैं, आई विल मेक इट ऑन द शीट, यू डोंट नीड टू कॉपी राइट नाउ कुछ भी। मीन्स हम कब कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर जो है दैट इज गुड? A capital structure will be said to be optimal when the proportion of debt and equity is such that it increases the equity shares price value, EPS, और इसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल लेवरेज। प्लीज अगर आपके पास इफ यू आर हैविंग योर बुक तो इस चीज को अंडरलाइन कर लेना, इट इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल लेवरेज। द प्रोपोर्शन ऑफ डेप्ट इन द ओवरऑल कैपिटल, मतलब कितना डेप्ट होगा और कितना आपका, जो अभी ऊपर हमने जो एक फॉर्मूला किया था, दैट इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल लेवरेज। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आपसे पूछा जाता है क्या होना चाहिए, एंड देन यू मे बी गिवन अ क्वेश्चन, आपको खुद करना है। मीन्स इसके अंदर यू हैव टू टेक द एग्जाम्पल ऑन योर सेल्फ। नाउ लेट अस कम टू वन एग्जाम्पल विच इज गिवन इन द बुक। दिस इज, ये कंपनी है, ये एक कंपनी है जिसका टोटल फंड है 30 लाख। ठीक है, 30 लाख है। अब ये 30 लाख कैसे है? देर आर डिफरेंट सिचुएशंस। द सिचुएशन कैन बी, there can be more of debt also, there can be less of debt also, there can be no debt. अब है पहला सिचुएशन है, इन द अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सिचुएशन, मतलब ये एक ही कंपनी है, इसके तीन हम सिचुएशंस बना रहे हैं। मान लो, मान लो द कंपनी इज हैविंग अ डेप्ट ऑफ निल, मतलब कोई डेप्ट नहीं है, पूरा का पूरा इक्विटी शेयर है। उस सिचुएशन में क्या रहेगा? सेकेंड इज, एक सिचुएशन जिसमें आपका डेप्ट 10 लाख है, यानी कि 30 लाख हमारा टोटल फंड है, तो उसमें 10 लाख हमारा डेप्ट है। एंड तीसरा है जिसमें 20 लाख हमारा डेप्ट है। तीनों सिचुएशन में इंटरेस्ट रेट इज 10%, टैक्स रेट इज 30%, एंड EBIT, that is earning before interest and tax, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, वो हमारा 4 लाख है। मतलब हमने अभी ना तो इंटरेस्ट दिया है ना टैक्स दिया है, हमारा जो होल अर्निंग है। तो पहला सिचुएशन वो कहते हैं इफ EBIT इज 4 लाख। हम लोगों ने अभी शेयर्स पर नहीं जाना, हमें सिर्फ EBIT पर वर्क करना, हमें सिर्फ प्रॉफिट पर वर्क करना है। 4 लाख है, पहले सिचुएशन में तो हमें कोई इंटरेस्ट देना ही नहीं था क्योंकि पहले सिचुएशन के अकॉर्डिंग द कंपनी हैज टेकन नो डेप्ट। दूसरे सिचुएशन में द कंपनी हैज टेकन 10 लाख रुपीज एज डेट। 10 लाख पे 10% आपका 1 लाख रुपीज दे हैव टू गिव एज इंटरेस्ट। एंड सेकेंड सिचुएशन में 20 लाख, 20 लाख का 10% इज 2 लाख रुपीज, सो दे हैव टू गिव 2 लाख रुपीज एज इंटरेस्ट। अब नेक्स्ट हमारा है EBT। फर्स्ट सिचुएशन में हमारा EBT है, पूरा ही रहेगा, यानी कि हमें जो टैक्स देना है EBT पे देना होता है। वी हैव टू ऑलवेज पे द टैक्स ऑन EBT। अब हमें पहले सिचुएशन में हमारा 4 लाख है, सेकेंड में 3 लाख है, थर्ड में 2 लाख है। अब अर्निंग हमारी कम हो गई है, बट इन द फर्स्ट सिचुएशन वी हैव टू पे 30% टैक्स, यानी 1,20,000। सेकेंड में 90, थर्ड में 60। अब हमारा EAT आया 2,80,000, इसमें 2,10,000 और इसमें 1,40,000।
नेट प्रॉफिट हमारा। तो हमारा एक शेयर पर कितना अर्निंग रहेगा, एक शेयर पर कितना अर्निंग रहेगा। नाउ हाउ डू वी फाइंड आउट। अब पहले वाले में हमारा क्या था, 4 लाख रुपीस पूरा इक्विटी था। हम नंबर ऑफ शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 रुपीज, मैंने आपको बताया था अगर आपको पेपर में नहीं दिया है तो आप लोग 10 रुपीज लेकर चलोगे शेयर्स की कीमत। दैट इज द वैल्यू वी assume 30% टैक्स एंड 10% इंटरेस्ट एंड 10 रुपीज शेयर की वैल्यू। दिस इज द अजम्पशन हम करते हैं अगर नहीं दिया है तो। अब कंपनी का जो ओवरऑल कैपिटल है वो है 30 लाख, ठीक है। 30 लाख में हम लोगों ने 30 लाख डिवाइडेड बाय 10, 3 लाख शेयर था। सेकेंड में हमारे पास 10 लाख रुपीस हमारा डेप्ट है, यानी कि 20 लाख हमारा अपना फंड है, 10 हमने कर्जा लिया है। तो 20 डिवाइडेड बाय 10 इज 2 लाख शेयर्स। और तीसरे में सिर्फ 10 लाख हमारा है और 20 लाख हमने कर्जा लिया है। तो नंबर ऑफ शेयर्स 10 डिवाइडेड बाय 10 लाख डिवाइडेड बाय 10, 1 लाख। Are you able to understand how we have divided the number of shares? द शेयर कैपिटल जो हमारा होगा उससे हम शेयर को, जो शेयर की वैल्यू उसे डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट में हमने कोई कर्जा नहीं लिया, 30 लाख पूरा इक्विटी है, तो 30 लाख डिवाइडेड बाय 10 इज 3 लाख शेयर्स। सेकेंड में 10 लाख रुपीज हमारा कर्जा है एंड 20 लाख इक्विटी है, तो 20 लाख डिवाइडेड बाय 10 इज 2 लाख शेयर्स। एंड इन थर्ड 10 लाख हमारा अपना है, तो वी हैव डन। Now we will divide EAT upon number of shares. We would divide EAT upon number of shares. यानी कि 2,80,000 divided by 3 lakh, 2,10,000 divided by 2 lakh, 1,40,000 divided by 1 lakh. तो हर शेयर पर हमें कितना हमारा पैसा बढ़ता है, अर्निंग पर शेयर। तो पहले सिचुएशन में हमारा है 93 पैसे, सेकेंड सिचुएशन में है 1,05,000 पैसा एंड थर्ड है 1,40,000 पैसा। यानी सबसे ज्यादा हमें किसमें फायदा हुआ, जब हमने डेट लिया। ये सिचुएशन इस कंपनी के लिए फेवरेबल था। तो दिस इज हाउ वी ट्राई टू फाइंड आउट हमें कर्जा ज्यादा लेना चाहिए या फिर वी हैव टू टेक लेस। ऐसा ही इन्होंने एक और बनाया है सिचुएशन सेम। इसके अंदर जो है दे हैव टेकन 3 सिचुएशंस एंड इसमें ईपीएस सबसे ज्यादा तब है जब आपका देयर वाज नो डेट। पहले वाले में सबसे ज्यादा उस वाले सिचुएशन में थे जहां डेप्ट ज्यादा था, लेकिन इस सिचुएशन में सबसे ज्यादा हमारा जो डेप्ट है, जिसमें डेप्ट नहीं है, वो सिचुएशन हमारा जो है इट हैज प्रूवन टू बी favorable. So that means we have to calculate what should be the ratio. उसके अंदर था 20:10, मतलब 20 लाख हमारा डेप्ट था और 10 लाख हमारा इक्विटी था, 2:1, तो that was favorable. So this way we try to find out the company's financial leverage. So we try to find out, और इसको हम ये भी बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, यानी कि वेदर वी शुड यूज इक्विटी मोर और वी शुड यूज डेप्ट फंड मोर. Financial leverage is the formula debt upon debt plus equity, whereas trading on equity is should we dilute the equity, should we go for debt fund, that is आपका situation.
एंड व्हेन यू आर गिवन दिस क्वेश्चन यू हैव टू फॉर्म वन, आपको एक एग्जाम्पल करना है, या समटाइम्स यू मे बी गिवन द एग्जाम्पल, यू मे बी गिवन दैट कंपनी का ये मतलब कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, ये टैक्स रेट है, ये आपका मतलब कि इंटरेस्ट रेट है, एंड दिस इज द कैपिटल, फाइंड आउट द ईपीएस। तो सबसे पहले आपको लेकर चलना है ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, देन आपका ईबीटी, इन अर्निंग बिफोर टैक्स, देन ईएटी, अर्निंग आफ्टर टैक्स, और ईएटी अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू ईपीएस। EAT upon number of shares is equal to EPS, earning per share. So this is how we try to find out the capital structure, optimum capital structure. Now what are the factors जब हम इस decision को लेते हैं कि कितना डेप्ट होना चाहिए, कितना हमारा इक्विटी होना चाहिए, तो what are the things that we have to keep in mind? As I have been repeatedly telling you, अगर आप कर्जा लेते हो तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और इंटरेस्ट देना पड़ेगा तो कैश फ्लो आपका ज्यादा होना चाहिए। तो यू हैव टू कीप सर्टेन फैक्टर्स कि आप कौन से कैपिटल स्ट्रक्चर को लेना चाहते हो। पहले आप एक ब्लूप्रिंट बनाते हो, अगर आपने कर्जा लिया तो ईपीएस कितना रहेगा, कर्जा नहीं लिया तो कितना रहेगा, कर्जा ज्यादा लिया तो कितना करोगे, यू विल मेक अ ब्लूप्रिंट एंड देन यू विल डिसाइड ऑन द फैक्टर्स। The very first is cash flow position. क्योंकि size of projected cash flows must be considered before borrowing. As I have said, you have the payment obligations. आपका business operation, raw materials, आपको ये भी देखना पड़ेगा। Investment, debt service, बाकी चीजें भी आपको देखनी पड़ेंगी। आपके जो वेरिएबल्स हैं पूरे साल के, उनको भी देखना पड़ेगा। There might be some fixed cost, there might be some variable cost. तो आपको कैश फ्लो देखना पड़ेगा, whether you are having handy cash to pay the interest or not. Next is ICR. ICR normally it doesn't come as an explanation, but it may come as a formula. The interest coverage ratio refers to the number of times earnings before interest and taxes of a company covers the interest obligation. How? Means EBIT, earning before interest and tax upon interest. मतलब हमें ये देखना है कि जब हम इंटरेस्ट और टैक्स देने से पहले हम एक अंदाजा लगाते हैं कि कितना रेशियो होगा। व्हाट इज द रेशियो? यानी कि ईबीआईटी के सामने अगर हम इंटरेस्ट दे रहे हैं तो हमारी अर्निंग पर कितना फर्क हो सकता है, हमारा कैश बैलेंस कितना कम या ज्यादा हो सकता है। इंटरेस्ट कवरेज मतलब जो मेरा मतलब मान लो मेरी कमाई 1000 रुपए है, मेरी कमाई 1000 रुपए है और मैं 800 रुपए टैक्स दे रही हूं, सॉरी इंटरेस्ट दे रही हूं, तो मेरा इंटरेस्ट रेशियो तो बहुत ही बेकार है। मैं 200 रुपए में बाकी खर्चा कैसे चलाऊंगी? तो आई हैव टू फाइंड आउट दैट रेशियो। नॉर्मली जब हम लोन लेते हैं ना, तो लोन में अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट, आरबीआई के अकॉर्डिंग 20% मतलब you should 80% you should be able to save and 20% should be there on the loan side. आपको तभी जो है you get the loan. The reason is अगर आपके पास लोन के पैसे चुकाने के लिए नहीं होंगे, इतनी आपकी इनकम ही नहीं आ रही होगी, तो आप कैसे लोन चुकाओगे? The higher the ratio, lower shall be the risk of company failing to meet its interest payment. This ratio is not an adequate measure. A firm may have a high EBIT but low cash balance. मतलब ये एक सिर्फ एक रफ फॉर्मूला है कि हमारे पास कैश कितना बचेगा, मतलब हम प्रोपोर्शनेट लगाते हैं और उसको हम सिंपल कैलकुलेट करते हैं। मान लो हमारा 1,00,000 रुपए जो है दैट इज द EBIT और इंटरेस्ट हमारा जो है 10,000 है, तो मेरा ICR क्या रहेगा? 1,00,000 डिवाइडेड बाय 10,000, 10,000।
यानी कि 10,000 रुपीज मुझे इंटरेस्ट देना है, 90,000 इज गोइंग टू बी इन माई हैंड, 90,000 इज गोइंग टू बी इन माई हैंड, सो दैट इज ओके। बट मेरी कंपनी में और भी ऑब्लिगेशंस होंगी, I may have to pay the rent, I may have to have higher working capital. Next is DSCR, Debt Service Coverage Ratio. जो हम ICR में कवर नहीं कर पाए हैं वो हम DCR में करते हैं। The cash profits generated by operations are compared with total cash required for the service of the debt and preference share capital. इसको आप लर्न मत करना, ICR को जरूर कर लेना। A higher DSCR indicates better ability to meet cash commitments, so the company can increase debt component in its capital structure. यानी कि अभी हमने जो ऊपर किया था ना, वो एक फैक्टर था कि हम डेप्ट को ले सकते हैं, बट डेप्ट को लेने से पहले हमें ये भी चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। नॉट ओनली दैट ईपीएस के साथ कैश फ्लो, आईसीआर, डीएससीआर, इनको भी रखना पड़ेगा। देन आरओआई, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस मे कम इन अ 2 marker क्वेश्चन और इट कैन कम एज अ इन द आइडेंटिफाई वाला जो क्वेश्चन है उसमें भी आ सकता है। ROI should always be higher than what you are going to pay as interest. अगर आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज 10% एंड आपका इंटरेस्ट रेट इज 12%, तो यू विल नॉट बी एबल टू। इफ the ROI of the company is higher, then it can choose to use trading on equity, यानी कि आप डेप्ट को इंक्रीज कर सकते हो। इट्स द सेम थिंग, 10% अगर आपका जो है ROI जो है, इट इज जैसे यहाँ पे लिखा ROI is only 6.67%, which is lower than its cost of debt. And in example 1, ROI is 13.33 and trading on equity is profitable, जो हमने 2 एग्जाम्पल किए थे। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आप कैसे कैलकुलेट करते हो? आपका टोटल कैपिटल अपॉन द प्रॉफिट इज द ROI. सो यू कैन, अगर आपका ROI ज्यादा है एंड आपको जो इंटरेस्ट देना वो कम है, तो यू कैन टेक डेप्ट फॉर चांस। कॉस्ट ऑफ डेप्ट, this depends on many kinds of constraints, this depends on many kinds of situations. Like अभी जो है people are not going for equity shares, तो कॉस्ट ऑफ डेप्ट इस वक्त हो सकता है ज्यादा हो जाए। आरबीआई कभी कभी कुछ पीरियड के लिए ज्यादा कर देता है, तो यू हैव टू सी। अगर लोअर रेट पे आपको डेट मिल रहा है, लाइक कंपनी गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी निकाला है, अंडर दैट यू आर गेटिंग अंडर अ लोअर रेट, कोई रिबेट पीरियड चल रहा है, यू कैन टेक। टैक्स, टैक्स एक सबसे बड़ा रीजन होता है जिसके लिए कंपनीज जो है नॉर्मली दे टेक द लोन। हायर द टैक्स, प्रॉफिट हमारा उतना ही कम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मेनी, मतलब टैक्स आपकी डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट यूनिट्स के लिए अलग होते हैं। हाउ आई सेड कंपनी एंड यूनिट, लाइक टेक्सटाइल्स है, टेक्सटाइल्स में कॉटन के लिए अलग है, वुलन के लिए अलग है, सिल्क के लिए अलग है, सो द टैक्स रेट में बी लेसर और मोर। और प्रॉब्लम क्या है, अगर आप लोन लेते हो तो जो भी आप इंटरेस्ट देते हो ना उस पर आपको कभी टैक्स नहीं देना पड़ता, बट अगर आप लोन नहीं लेते हो तो आप जो टोटल आप प्रॉफिट दिखा रहे हो उस पर आपको टैक्स देना पड़ता है। एंड ये जो टैक्स रेट है ना, ये हम डे टू डे में भी यूज करते हैं, इवन एज अ कंज्यूमर। समटाइम्स वी टेक द लोन जस्ट टू गेट द सब्सिडीज, so we have to also see that cost of equity,
Means stock owners expect a rate of return from equity which is commensurate with the risk they are assuming. When a company increases debt, the financial risk faced by equity holders increases. So, their desired rate of return may increase. It is for this purpose that a company cannot use debt beyond a point. क्यों? अगर आप ज्यादा कर्जा लोगे तो शेयर होल्डर्स को यही होगा ना, या तो वो शेयर से पीछे हट जाएंगे या फिर वो उम्मीद करेंगे कि दे शुड गेट मोर प्रॉफिट। एंड अगर शेयर प्राइस डिक्रीज हो जाता है तो देन द शेयर होल्डर्स में विदड्रॉ। सो वी हैव टू सी कि हम कितना डेप ले सकते हैं जिससे कि हमारे शेयर वैल्यू पर फर्क ना आए, शेयर वैल्यू पर फर्क ना आए। फ्लोटेशन कॉस्ट, अभी देर आर मेनी कंपनीज जिनकी शेयर्स की जो वैल्यू है वो कम हुई, not because of the situation of war but because of the situation the company did not plan well. नाइका आपका लॉस में चल रहा है, देन पेटीएम आपका लॉस में चल रहा है, तो ये जो लॉस में चल रहा है दिस इज शेयर होल्डर्स, क्योंकि उन्होंने डेब्ट ज्यादा उठाया है, शेयर होल्डर्स को जो है प्रॉफिट कम आने की चांसेस है। समटाइम्स इट इज एग्जैजरेटेड। देन जब हम बात करते हैं कमर्शियल पेपर की तो वी ऑलवेज से दैट कमर्शियल पेपर इज यूज्ड फॉर रेजिंग द इक्विटी, सो वी नीड अ गुड एक्सपेंडिचर। मतलब पब्लिक इश्यू करना कोई मजाक नहीं होता। अभी मैं कल पढ़ रही थी, आई डोंट नो, जो फ्लिपकार्ट का जो पहले ओनर था, फाउंडर था सचिन बंसल, उसने जो अपना नया बिजनेस स्टार्ट किया, दे हैव अप्लाइड फॉर पब्लिक शेयर्स। नाउ टू अप्लाई फॉर द पब्लिक शेयर, इट इज हमारे लिए तो दैट इज ओनली अ सेंटेंस, बट वी हैव टू सी हमारे पास उतने पैसे हैं। यस, कंपनी ब्रिंग इट फ्रॉम, दैट डिपेंड्स ना, डेप्ट इज अ लोन ना, डेप्ट में तो डेप्ट के अंदर ही तो डिबेंचर आ गया ना आपका। डिबेंचर इज काइंड ऑफ डेप्ट, इट्स नॉट, इन फैक्ट इट इज डेप्ट, it comes under borrowed fund because we have to return back. तो आपको फ्लोटेशन कॉस्ट देखना पड़ेगा, हम उतना फ्लोटेशन कॉस्ट को, आर वी एबल टू, रिस्क कंसिडरेशन, risk is there in both. Use of debt increases financial risk of a business. मतलब आपको इंटरेस्ट देना है, प्रेफरेंस भी देना, आपको डिविडेंड भी देना है, रीपेमेंट भी करना है, आपको बिजनेस में ऑपरेटिंग रिस्क भी रहेगा, देन आपका बिजनेस एनवायरमेंट रिस्क भी रहेगा। तो यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल सी कि अगर आपका रिस्क लोअर है तो आप डेप्ट को ले सकते हो, आपके पास इन चीजों की कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, आपने सिर्फ एक ही लोन उठाया है, देन यू कैन गो। फ्लेक्सिबिलिटी इज व्हाट वी से, एवरीवेयर से भी जो है नॉर्मली इट गिव्स यू वन कंट्रोल कैप, आपको एक मतलब कि दिया जाता कि आप इतने ही इक्विटी निकाल सकते हो और इतना ही आप डेट ले सकते हो। सो कंपनी ऑलवेज कीप्स अ मार्जिन, मतलब मुझे 100 करोड़ जो है आई कैन टेक, आई कैन बोरो, तो मैं पूरे के पूरे 100 करोड़ एक बार में नहीं उठाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है कि मैं इस बार उठा लूंगी, अगली बार मैं नहीं उठा पाई तो क्या होगा। सो आई वुड टेक दैट फ्लेक्सिबिलिटी कि मैं इस बार आई गो फॉर इक्विटी, आई गो फॉर डेप्ट इतना, I'll keep that flexibility. Next is control. When you are taking the loan, there is nothing. आपका सिर्फ एक कंट्रोल होता है कि जहां जिस इंस्टीट्यूशन से आप लोन ले रहे हो, they may be putting some pressure, but कंट्रोल आपका वैसा डाइल्यूट नहीं होता है। अब जो हम लोगों ने जिन बच्चों ने शार्क टैंक देखा होगा, दे नो दैट भारत पे जिसका फाउंडर अशनीर है, he has lost his entire control. मीन्स जितना मैं शेयर्स को डाइल्यूट करती जाऊं, मेरे पास अभी 51% थे लेकिन आज मेरे पास 10% है, तो मेरा कंट्रोल तो खत्म ना।
जिसके पास ज्यादा शेयर्स होंगे, दैट पर्टिकुलर पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन विल बी हैविंग मोर से इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एंड हो सकता है कि मैंने ही फाउंड किया है, लेकिन व्हेन आई हैव सोल्ड इट एंड आई हैव केप्ट ओनली 10%, तो जो 90% है, दे मे टेक ओवर, दे मे फोर्स मी टू सेल आउट दैट। देर आर सो मेनी सिचुएशंस, तो ये हमें देखना पड़ता है। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, एज आई सेड, सेबी पुट्स सर्टेन फ्रेम, सर्टेन कंट्रोल। अगर हम इक्विटी जाते हैं तो प्रोसीजर्स, और अगर हम डेट में जाते हैं तो देर आर सो मेनी गाइडलाइंस कि हम कितना डेट ले सकते हैं, कहाँ से ले सकते हैं, मतलब कि देन वी हैव टू प्रोड्यूस ऑल द डॉक्यूमेंट्स, हमारे पास वो सब कुछ होना चाहिए। तो व्हाट आर द फ्रेमवर्क? स्टॉक मार्केट रिएक्शन, अभी जैसे स्टॉक मार्केट इज वेरी वेरी डन right now, stock market is very very dull. So there are two, one is the boomish period, one is the bullish period, and one is the bearish period. Bullish period मतलब जब पीरियड आपका बहुत ही अच्छा होता है। वॉर से पहले जो सिचुएशन था, दैट वाज वेरी गुड। आई नो दोज पीपल हु हैड bought the shares, within one day the shares had tripled. But now after the war it has completely come down. अगर इस वक्त में कोई भी कंपनी रेस करेगी इक्विटी शेयर्स तो खरीदेगा नहीं। तो यू हैव टू सी दैट। कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनीज, मतलब दिस इज ओनली यू यूज इट। हम जरूरी नहीं है कि दूसरी कंपनी क्या कर रही है वो कर रहे हैं, बट व्हेन यू आर इन द, हम कहते हैं ना, पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं, तो वी हैव टू ऑल्सो सी कि दूसरी कंपनी इस मार्केट में कैसे अपने आप को स्टैंड करती है। वो चाहे कंपटीशन इज इन द मार्केटिंग फील्ड, वेदर इट इज इन द कंज्यूमर फील्ड, वेदर इट इज इन द फाइनेंशियल फील्ड, हर जगह पर वी हैव टू टेक द सेम थिंग। उनका क्या है, हाउ मच दे हैव टेकन द डेट, उन्होंने डेट कहां से लिया है, हाउ मच शेयर्स दे आर होल्डिंग, हाउ मच शेयर्स दे आर विद, मतलब कि उन्होंने बेचा है। वी हैव टू कीप एवरीथिंग इन माइंड, वी हैव टू कीप दोज रेशियोज। वी कैन नॉट कंप्लीटली रिलाई ऑन देम, बट वी मस्ट केयर, क्योंकि हम वी कैन नॉट फॉलो द इंडस्ट्री नॉर्म्स ब्लाइंडली, बट यस वी नीड टू नो, क्योंकि वो आपको एक अंदाजा लगाता है किस जगह पे हमारा फाइनेंशियल रिस्क है, किस जगह पे फाइनेंशियल रिस्क नहीं है, ये सारा अंदाजा लगाता है। Thus the management must know the industry norms, whether they are following, deviating, or they are giving adequate justification, उनको सारा देखना पड़ता है। So before we decide on the capital structure, we need to keep everything in mind. एक एक चीज का ऑल्टरनेट्स निकालना पड़ता है, एक एक चीज को हमें एनालाइज करना पड़ता है। वी हैव टू गो फॉर अ थरो व्हाट वी से वर्किंग। ये वर्किंग आपके इतने पीपीटीज बन जाते हैं, 150 स्लाइड्स बन जाती हैं, उसके अंदर आप आईसीआर, डीएससीआर, कैपिटल स्ट्रक्चर सब कुछ निकाल रहे हो। देन यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द मोस्ट ऑल्टरनेटिव and then you are deciding it. So this is how financial planning is done, and capital जो budgeting है उसके लिए हम लोग ये सारा रखते हैं। In the next class when we meet, that is the last class, this chapter I am taking along. The reason is that this is the first time I am taking it with NCERT. So in the next class we would be first of all doing a working of the capital. ये तो मैंने आपको एनसीईआरटी से करवाया, बट आई विल बी डूइंग इट ऑन माय ओन on the board, and then we would move to the last sector, that is fixed and working capital. With this, at least this chapter would be completely over.